din din da din din da din din da din din da dina di dina dina di dina din tak dina tu na kat da tak dina din din da din din da tak tu na kat din tak dina da din din da din din da din din da din din da dina di dina dina di dina din tak dina tu na kat da tak dina din din da din din da tak tu na kat din tak dina da din din da din din da da din din da din din da dina di dina dina di dina din tak dina tu na kat da tak dina din din da बाबा हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं मेरे दोस्त कैरेक्टर है मेहता रूपा एंड Anand Pandey Film Production Management Center proudly welcomes the one and only this is AMA Film seeing Sanju face to face. Director is Anand Pandit, कैमरा रूपा पंडित, उसके आंख के बिना कुछ होता नहीं है, इसलिए 6 अक्टूबर 2018 सर क्लैप करिए। एक वन एंड ओनली રૂપા એન્ડ આનંદ પંડિત એએમએ ફિલ્મ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ સેન્ટરની સ્થાપના થઈ એટલે મને અમદાવાદ આવવાનું એક ઓર બહાનું મળી ગયું. વિશેષ વાત તો એ છે કે મુંબઈમાં બનાવેલા ખાસ દોસ્તોને શાનથી મારા શહેરમાં આવેલી આ એએમએ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બતાવીને 2 વેંત ઉપર ચાલવાનો મોકો મળી જાય છે. માટે તો આ 15 દિવસમાં ફરીથી એક સુપરસ્ટારને લઈને અહીંયા પર આવ્યા છીએ. મોટા પડદા પર એક્ટિંગ કરતો એક્ટર જ્યારે આપણને આપણો અંગત લાગવા માંડે ત્યારે તે એક્ટર મટીને સુપરસ્ટાર બની જાય છે. 15 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં અહીં ફરી આવવાનું થાય અને એ પણ એવી વ્યક્તિ, એવા મહેમાન સાથે જેની જિંદગી પોતે જ ફિલ્મ હોય. મારા પોતાના શહેરમાં મારી પોતાની માતૃભાષામાં મારા અતિ અંગત એવા દોસ્ત સંજય દત્તને આવકારતા મજાની લાગણી થાય છે. ફિલ્મ મેકિંગ એ કદાચ એકમાત્ર બિઝનેસ હશે કે જેમાં સાયન્સ, કોમર્સ ને આર્ટ્સ ત્રણેય ભેગા હોય. આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો હેતુ ફિલ્મ મેકિંગના ત્રણેય પાસાઓનો અભ્યાસ છે ને આ અભ્યાસ માટે સંજય દત્ત જેવા મહેમાન આપણે ત્યાં આવે એ આપણા માટે વિશેષ ગૌરવની વાત છે. નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ. મને ગુજરાતી આવે છે, થોડું આવે છે, પંજાબી પણ આવે છે, ગુજરાતી પણ આવે છે, મિક્સ થઈ જશે. लेकिन आज मुझे इतनी खुशी हुई है यहाँ के. मेरा प्रोग्राम चिराग के साथ था, वो भी मेरा भाई है, वहाँ खड़ा है. और आनंद भाई और भाभी मेरे फैमिली तरह हैं. तो आनंद भाई ने मुझे बोला कि तू वहाँ जा रहा है. मैंने बोला हाँ सर. बोले मेरे स्कूल आएगा. मैंने बोला हाँ सर. तो तू बोले मेरे को तू ना सर क्यों नहीं बोलते. नहीं तो मैं आनंद भाई को कभी नहीं बोल ही नहीं सकता. ये मेरे फैमिली से बढ़ के हैं. और मैं मम्मी से ये कहना चाहता हूँ कि मम्मी आपको बहुत गर्व होना चाहिए कि ऐसा बेटा. और आप सबने इतना जो स्टूडेंट्स के लिए किया है वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है. मुकेश भाई, राजीव भाई, सब लोग. और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ मारू कमली અહીંયા છે. और બીજું પણ બહુ મોટું एक्टर છે अजय पटेल. ये अभी इन्होंने मीना टॉकीज में काम किया है. ये भी यूएस के हैं. और मेरा
दोस्त और भाई हार्दिक पटेल सूरत के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सीधा हमारे दिल की बातों का दौर शुरू करें सर। हम ये सोचते हैं कि अगर आज के संदर्भ में ये गांधीगिरी का प्रयोग करना है तो भारत का नवनिर्माण करने में वो कैसे प्रदान दे सकता है? मेरे फादर के विचार गांधीयन विचार थे। वो हमेशा गांधी जी को साथ लेके चलते थे, तो हम सब उन्हीं विचारों से बड़े हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देयर इज नथिंग मोर ग्रेटर देन पीस एंड लव एंड रिस्पेक्ट। एंड जितना भी मेरे से हो सकता है मैं वही कहता हूँ कि यू मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, स्पेशली योर एल्डर्स, इवन योर सर्वेंट एट होम। अगर वो आपसे बड़ा है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो आई थिंक हर आदमी अगर गांधीगिरी को पकड़ के चलेगा तो एक अच्छा इंसान बनेगा। क्या बात है। हमारा एक और प्रश्न लेके आते हैं हमारे भाई दिनेश राडिया। Sanjay ji, kindly share any specific or memorable moment of your life that significantly changed you, both as a person and as an actor. Well, you just saw the most significant thing in my life in that clip just now. And I realized that only after my father died. Because MBBS की shooting चल रही थी and my father had met with an accident, तो उनके हाथ चल नहीं रहे थे और वो hugging के टाइम पे थोड़ा बहुत दर्द हुआ था उनको। तो वी सेड के हम लोग पैकअप कर देंगे तो उन्होंने बोला नहीं पैकअप नहीं, मेरे को रेस्ट करने दो। रात के 2 बजे थे एंड जो डायलॉग्स अगर आपने सुना उसके अंदर जो उन्होंने कहा, ही एक्चुअली मेंट व्हाट ही सेड। और जो उन्होंने जब मुझे पकड़ के जो प्यार किया, आई कुड फील दैट इट इज नॉट एक्टिंग, इट इज रियल, So I think that was a very important thing for me to change my life, to know that actually he was proud of me and he is. Given a chance, which film would you like to act in again? अरे बाप रे, ये तो मेरी वाट लगा दी। Actually for an actor, I mean, there's so many genres we work in. Please बैठिए। There's so many genres we work in. There's so much we express and we emote those characters के I can't pinpoint. लेकिन अभी if you see what I really enjoyed about 4, 5, 6 films, one was Munna Bhai for sure, Vastav, Agnipath. I loved Kaante. Kaante was fantastic. Sadak was great. Sajan, Khalnaik, yes. तो I mean, एक एक्टर की जिंदगी में अगर गिनने को भी मिल जाए कि कितनी पिक्चरें पसंद है तो बहुत बड़ी बात है। सर आप तो सहवाग की तरह 2 सेंचुरीज की और बढ़ चुके हैं। आई थिंक 187 इज व्हाट विकिपीडिया सेज। प्रोबेबली यू मस्ट हैव, इफ वी कंसीडर द फिल्म्स इन द मेकिंग, सर 200 का नंबर कब बन रहा है? आई थिंक अभी 200 का नंबर यस, आई थिंक बाय मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा। वंडरफुल। धारा शाह, इन्होंने सर आपकी ये फिल्म बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल भेजा। ही वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। सर नरगिस जी की और सुनील दत्त जी की काफ़ी बात हम हर रोज़ याद करते हैं। आप हमें बताइए कि आप के जीवन में कुछ ऐसी क्षण, ऐसी बात जो आप हर पल 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 याद करते हैं। और बचपन में मैं काफ़ी मस्ती करता था, तो अगर आपने वेस्टर्न पिक्चर देखी है कभी, कोई वेस्टर्न पिक्चर, उसमें वो गन स्लिंगर होते हैं, ड्रॉ करते थे,
तो वो वैसे चप्पल फेंक के मेरे को मारती थी। तो मुझे मम्मी का प्यार बहुत याद है। और डैडी का, जैसे मैंने आपको कहा, वो बहुत एक स्ट्रिक्ट आदमी नहीं थे। वो मुझे बोलते थे कि अगर तू डरता है मुझसे, इसका मतलब है कोई गलत काम किया। अगर तू मेरी इज्जत करता है वो दूसरी बात है, अगर डरेगा तो दैट मीन्स यू डन समथिंग रॉन्ग। बट ही वॉज अ मैन विथ टफ लव, एंड आई थिंक every child should be brought up with tough love, I feel. Hiren Mehta. My question is, what is important for a successful film? Stars or script? I feel script. I think script is the most important thing, and content आज की डेट में. I think the film industry and the viewers have changed a lot. अभी आप लोगों के पास Amazon है, Netflix है, ये वो सब है. तो content is very very important. And naturally उसको portray कैसे किया जाए वो मैंने जय पटेल से सीखा है. तो I think content and script. संदीप भाई, आपका भी एक सवाल है. गुजरात से तो आनंद जी ने आपका नाता करा दिया है, लेकिन आपका पहले से गुजरात से कोई नाता था और उसके बारे में कुछ बताइए. काफी गर्लफ्रेंड्स गुजराती थी और मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर फ्रॉम गुजरात, लाइक परेश एंड जय एंड हार्दिक, एंड जो भी थोड़ा बहुत वक्त मैंने बॉम्बे में गुजारा है, ऑलवेज हैड अ लॉट ऑफ गुजराती फ्रेंड्स. सो आई एम वेरी वेरी क्लोज टू गुजरात. थेपलो एंड ढोकलो एंड एक्चुअली दे यूज्ड टू कॉल मी कड़ी दत्त. हाँ, कड़ी दत्त છે. तेजल वसावड़ा. The things are changing, as you rightly mentioned, that the Netflix and Amazon and all. So what do you think, what are the benefits of social media in promoting movies? I mean, I feel promotion is very, very important, and social media is playing a very important part in the promotions of the film. But I feel that one shouldn't go over the top in promoting a film. मतलब कि पीए ने काय को 10-12 करोड़ का करने का भाई. You know, अभी हम लोग के ज़माने में एक पोस्टर लगता था, वो पोस्टर देख के आनंद में है ना कि अरे यार ये मस्त पिक्चर है, देखेंगे. You know, but I think there should be a cap on publicity. I think जो होना बहुत ज़रूरी है. I think आनंद भाई knows it. आनंद भाई ऑलरेडी इंडस्ट्री में ये कैप लगाया हुआ है कि वो लोग 2.5 करोड़ से ऊपर ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं कर सकते हैं. आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है एज अ प्रोड्यूसर. क्योंकि जो कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म है उसमें भी आपको अगर विजिबिलिटी चाहिए तो आज ऐसा हो गया है कि टेलीविज़न पे, ऑन ग्राउंड पे, इन फिल्म में, सब जगह पे आपको एडवर्टाइज करनी पड़ती है. और जितना फिल्म का बजट है उतना प्रमोशन का बजट हो जाता है. सो दैट इज़ वेरी बैड फॉर द इंडस्ट्री. जैसे 10 करोड़ की छोटी फिल्म होती है तो 10 करोड़ की उसकी प्रमोशन होती है. जैसे मेरी अभी नेक्स्ट फिल्म आ रही है बाज़ार, जो गुजरात के ऊपर बेस्ड है. सैफ अली खान है, 26 तारीख को रिलीज़ हो रही है. तो छोटी फिल्म है बाबा, लेकिन इतना प्रमोशन करना पड़ता है, इतना पैसा डालना पड़ता है, उसके बाद में ही थोड़ी सी विजिबिलिटी मिलती है, बाकी विजिबिलिटी नहीं मिलती है. तो आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया. एक सवाल है फ्रॉम पंकज. पंकज प्लीज. I have an interesting question for you. Sanjuji, do you think that Indian audience is changing and how? See, I mean, Indian audience is not just in metro towns. I mean, I want everybody to understand that first. Is that हम लोग यही सोचते हैं कि यार वो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद में मल्टीप्लेक्स में पिक्चर सॉलिड चलनी चाहिए.
लेकिन सब ये भूल जाते हैं दैट अबाउट 90% ऑफ द ऑडियंस इज नॉट जस्ट मल्टीप्लेक्स. You know, so I mean, the thoughts are changing, but the soul of Indian cinema can never change. I mean, जो मदर इंडिया बनी थी वो आज भी चलेगी. You know what I'm saying? I mean, the industry is impacted. I think content अभी I think content driven बहुत पिक्चरें बन रही हैं आनंद भाई. So I mean that's good, but don't forget also a Satyamev Jayate becomes a big hit, and that is a total commercial film. That is catering to the audience I'm talking about. You know what I'm saying? तो I mean, अभी बीकानेर एक गांव है वहाँ बोहर करके, अभी वहाँ बिजली नहीं है तो वो कौन सा नेटफ्लिक्स चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर. तो वो जो 4 घंटा वो बिजली आती है उसमें वो अपनी पिक्चर देखेंगे ना, सत्यमेव जयते, दीवार, ये वो सब. तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल सर. हमारे सब फैकल्टी और डायरेक्टर्स ने, स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत की है. हमारी मालती मैडम है who is running this course. She has a very interesting question for you. You are a well-known star and superstar. I have a question that what is the USP of being such a big star and what is the secret of your stardom? I mean, firstly, be honest with your work. Secondly, no matter how big a star you are, लेकिन पैर जमीन पे होने चाहिए. क्योंकि मैं एक ही चीज जानता हूं कि अगर मैं संजय दत्त हूं तो आप लोगों की वजह से हूं. तो ये जो चीज है ये कभी एक स्टार को भूलनी नहीं चाहिए. मीन्स you have given me that starter. I have expressed a character, but you've loved it. So I want to thank you all for that. Thank you for making me. Thank you. Nirali Shah. Nirali. And as you were just speaking about stardom, I would like to express I have been a huge fan of Munna Bhai series, and I would love to see you again, and especially Munna Bhai Circuit Duo. My question to you is, what would be your advice to the aspiring actors? Firstly, you're a fan of Munna Bhai or of Sanjay Dutt also here. My advice to aspiring actors is, see, it's a very, very tough industry to be in first. And whether it's a small film or TV, if you feel that you got a good role to portray and be recognized, don't shy away from it. Oh, ऐसा नहीं कि मैं बड़ी पिक्चर का वेट करूँगा, ये करूँगा, but don't. As long as you give it, and give it your best shot, and you will succeed. Kabir Dave. Kabir. Hello. So thanks for visiting us. So my question is that, what was your reaction after watching the film Sanju? क्या ये मेरी जिंदगी है? That was my reaction, but after seeing that film, I mean, I thank my parents कि जिस तरह they stood by me and they got me onto the right path, you know, and it's a tough life, but please don't be inspired by that life. Learn from it, please. Learn from it. મારા કોલેજના અમુક ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા આવ્યા છે, એમાંથી કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો प्लीज. निश्चल. नमस्कार संजू जी, मैं बच्चन साहब का फ़ैन हूँ, और आपको अगर बच्चन साहब की कोई भी फिल्म करनी हो तो आप कौन सी करेंगे? बच्चन साहब. बच्चन साहब की पिक्चर मैं एक ही करना चाहूँगा और उसका नाम है दीवार. मेरा एक ही भगवान है, वो शिव हैं. वाह. और मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, और मैं भोले की तरह भोला हूँ.
सर वन लास्ट रिक्वेस्ट, एक बार आपका वो कैरम वाला डायलॉग चाहिए प्लीज सर। कौन सा था वो कैरम वाला? अभी सबने सुना सर। समथिंग ज्यूस पीवानो कैरम रमवानो અને મજાની લાઈફ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि अभी बीच में टीवी का स्क्रीन नहीं है, मतलब आई एम सीइंग लाइव फॉर यू फर्स्ट टाइम। आई एम ए बिग फैन सर। संजू मूवी देखने को काफ़ी इंस्पायर हुआ, मैं आपकी जस्ट इनर स्ट्रेंथ के बारे में पता चला मेरे को। सर मेरे थोड़ा क्वेश्चन हट के है, अल्दो आई एम फैन सर। अभी मैं ये पूछना जो यूथ जो सफरिंग, जैसे आपकी फिल्म में दिखाया कि आप एक डिप्रेशन से सफ़र कर रहे थे, तो सर हमें मतलब आप उन यूथ को क्या एडवाइस करना चाहिए कि हमें डिप्रेशन से कैसे फाइट करना चाहिए इन अपने लाइफ में, जैसे आजकल कंपटीशन है, ये सब कुछ है। देखिए, पहले तो डिप्रेशन और स्ट्रेस और मुश्किल ये सब चीज़ें हैं, ये तो ज़िंदगी में आते ही हैं हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो। किसी न किसी तरह का स्ट्रेस या मुश्किलात उनको आती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दारू की बाटली पी लो, इसका ये मतलब नहीं कि ड्रग्स में घुस जाओ। आई मीन आपको फोकस रखना चाहिए। फोकस फैमिली से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, बच्चे से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, और काम, कोई भी काम करो आप। जेल में मैंने मजदूरी का काम किया, गार्डनर था जेल के अंदर, मेरे को 2 रुपया पर डे मिलता था, ठीक है, मजदूरी का। लेकिन मैंने उसको भी बहुत फोकस लगा के काम किया। तो क्या होता है कि अगर फोकस लगा के करो कुछ भी काम, भगवान है, और अगर काम आप फोकस लगा के करो, कुछ भी काम हो, कभी डिप्रेस नहीं होंगे, ये याद रखना। हर एक करियर में रिटायरमेंट की एक एज है, शायद कुछ ऐसे गिने हुए करियर्स है जैसे कि आफ्टर देयर इज नो रिटायरमेंट। व्हाट डू यू फील, आपकी क्या तमन्ना है, आप कब तक काम करोगे, क्या करोगे, एंड व्हाट डू यू फील यू स्टिल हैव टू अकॉम्प्लिश इट? Well, I will want to work till the time I die. And I will work in inspiring roles. ऐसा भी नहीं है कि मैं अपना सब काला वाला करके अपना आलिया भट्ट के साथ नाचूंगा। I mean, see, every actor has to gracefully age. You know, you should. ये 100% ग्रेसफुली अगर आप एज करोगे तो बेटर रहता है, एंड यू टेक रोल्स अकॉर्डिंग टू हाउ यू डू। एंड मेरी एक ख्वाहिश है, अगर मेरा बेटा बड़ा होकर एक्टर बने तो उसका बाप का रोल मैं करूं। ये एकेडमी के लिए जब भी आप चाहो आप मुझे बुलाएं।